Good afternoon to everyone. Just before starting the today topic, I would like to thank you to the State Bar Councils, Punjab and Haryana for organizing such a event on the name of Baba Saheb Ambedkar. And this is a day where the state is organizing the functions on the completion of 100 years of practice of Baba Saheb Ambedkar as a lawyer. My name, I am Rahul Kumar Adhia, practicing lawyer at the Punjab and Haryana High Court last 5 years. And my colleague is with me, Sanjeev Kumar Birla ji, and we are both are present to sharing the contributions of the principal architect of the Indian Constitution. Who was the principal architect of the Indian Constitution? We all know. The one and only, the Dr. Baba Saheb Ambedkar. And I'm special thankful to the Mr. Suvir Sidhu ji for providing us the opportunity to share our views before such a huge elite group and the gathering. And now the function, the program is on a one topic where we are celebrating the 100 years as a lawyer of a Dr. B.R. Ambedkar. In my ability, मतलब in our language, अगर मैं कਹਾਂ कि मैं अपनी सोच के मुताबिक डॉक्टर अंबेडकर बारे कुछ दसां ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੱਸ ਸਕਾਂ I cannot dare to brief his idea, his ideology, his thought, his contributions in a brief sense. As we all know, we are an advocate now. You are with your parents, with some friends. As a lawyer, we know what is the contributions of Dr. B.R. Ambedkar. What is the exact contributions of the Dr. B.R. Ambedkar? Most of the educated people, that is a general myth. Most of the educated people knows the Dr. B.R. Ambedkar as the leader of the depressed class. That is very unfortunate for us. He is the global leader for us. He is the global leader. That is why I am telling you, I cannot define. There is not exact word. So in a single word I can address the Dr. Ambedkar that you can understand with a single meaning. He was a social reformer. He was a social reformer not only for me, for all the citizens. Not for the depressed class only, for women, for girl. What was his contribution behind? Maybe we don't know. I think we never try to understand what was his ideology behind all of this. As we understand, we know the Ambedkar as a drafting committee chairman, as a depressed class leader, not etc. That is, but in reality, he was a doctor. He got doctorate from LSE, London Economic School. He was the first Indian who got this doctorate. And secondly, he was the anthropologist. And the third one, he was the social reformer. Can you modify your building, your room? Can you modify your room? You have to take help of your laborers and the others. But he modified this nation's
with his thought, with his principle, with his spirit. Especially I am addressing to the woman only. This line to the woman. If you imagine your four-mother life, can you imagine four-mother life? अपने पूर्वजां दी अगर तुसी दादी दी और दादी दी लाइफ बारे अगर तुसी जानोगे, then you will understand what is the contributions of the Hindu code bill. What is the contributions of that? You have a choice now. In the Indian Constitution, Article 21 is there, right to life, which is very wide in nature. You choose one partner, with your wish you can marry with him. You got protections from the Honorable High Court under the provisions of the Article 21. So that is all. But there is some, still there are some practicing are going on in Haryana, in the other state. Some Khar Panchayat are there, some local customs are there. They cannot perform their marriage with their own wish. That is all. The constitution works not only for a lawyer to earn the money. It is for providing the justice to the all classes. Classes, to the minority, to women, to depressed. This constitution is for all. That is why this is our constitutions. That is why this is our constitutions. And मेरी एज भी बहुत ही ज़्यादा नहीं है, मैं भी ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਾਂ, और कुछ 4-5 साल की प्रैक्टिस ਤੋਂ ਬਾਅਦ और अगे 10 या 20 साल की प्रैक्टिस ਤੋਂ ਬਾਅਦ पता लगना कि what is the spirit of the constitutions. Especially we just focus on the articles. Sometimes we got some cases we have to prepare according to the wish of the client. जिस तरीके का client आना उस तरीके का तुसी case prepare करके you will file your case and will fight for the justice. But the whole concept of the constitutions, but in the whole concept of the constitutions, it will take a time to understand what is the exact constitution. Now, what was the thought of the Ambedkar? We are very lucky that we are sharing the idea on Dr. B.R. Ambedkar. Really, you are very lucky and I am very lucky. I am sharing my views on Dr. B.R. Ambedkar. Have you gone through his idea on equality, gender equality, his fight against inequality, injustice, for providing the human rights? You will study in your future and you will know what is the value of the human right and the others' rights. That in the exact form, the Ambedkar, when I started my lecture, I told you I cannot explain the Ambedkar in a single word. He was an advocate for the woman, who never gave a single penny to the Ambedkar to fight the case. He fought for them and he won the battle. He won the battle against the culture, the ancient culture, against the society. आपको वो तो पता होगा कि सती प्रथा थी यहाँ पर. सती प्रथा में जब पति मर गया उसके साथ ही वाइफ को भी जला दिया. क्या वो लागू करते हैं अभी? करते लागू? नहीं कर सकते. We cannot imagine such kind of custom and practice in the present day. Even we can't suffer a single day without a constitution. So understand the value of the constitutions. Now there are many judges in the apex court, the Supreme Court, the many judges in the various high court and in the lower courts too.
You can see there is a number of the strength of the women are there. Women are there. जिस औरत को ये कहा जाता था ढोल गवार शूद्र और नारी सब ताड़न के अधिकारी, ढोल गवार और शूद्र और नारी सब ताड़न के अधिकारी, मतलब कस्टम, some text, some literature which was against the woman, and he fight against all the system. Who fight against? The Ambedkar. And we just only know him that he was the leader of the depressed class. Just only know him as a leader of the depressed class. Do you know that the president at that time and the home minister Sardar Vallabhbhai Patel and the other prominent leader after the independence, they were also against the Hindu Code Bill. Now you have a strength, you have a wealth, you have a right, you are filing your case. No, I have a right in my parents' property, just because of Dr. B.R. Ambedkar. He moved many times his resignation to the chairman. Why? Because they were not accepting the Ambedkar proposal for providing the right to the women. He offered his resignation in case if you are not ready to provide the equal right to the woman, then I have no wish to continue as a drafting committee chairman. अम्बेडकर अपने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनने के लिए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग काफ़ी लंबी शुरुआत से, बचपन से लेके जब क्लास में जाने नहीं दिया, पानी नहीं पीने दिया और क्लास में पढ़ाते समय उनको बाहर निकाल दिया गया, अपनी पूरी लाइफ की ह्यूमिलेशन फेस करते हुए, स्ट्रगल करते हुए उन्होंने ये चीज़ नहीं देखी कि मैंने औरतों को अधिकार देने के लिए अपना रेजिग्नेशन क्यों दे दिया. Why? The question is why? Because the reason is he was against the inequality. He was against the inequality. Inequality in form of not providing the right to the woman, not providing right to the minority, not providing right to the depressed class. That is why his stand against the whole committee, he always raised a voice of a voiceless people. You will go through, there is a one article, Article 25B. Have you gone through? What is the Article 25B? There is a one provision in the Indian Constitution. आज आपने देखा होगा कई सिख कम्युनिटी अब्रॉड में सेटल है एंड दे वेयरिंग द किरपान, ऑल द एसेंशियल्स जो 5 कंकार जरूरी है एक सिख को बनने के लिए, एंड इट गॉट द नेशनल इंटरनेशनल रिकॉग्निशंस. उसको अंतर्राष्ट्रीय और इंटरनेशनल लेवल पे मान्यता किसने दिलाई? They gave the reference of the Article 25B. So, due to this provision, Sikh communities are practicing their rights, rituals at the international level. So, we are just saying that he was the leader of the depressed class. That is why we are saying, because we don't know, or intentionally we are saying that he did nothing, he did only for the depressed class. Such kind of event which is organized by आज today जो organize किया है, it is very much important for the everyone. Reconstruction of the whole society, not only for the depressed. Suppose अगर ये संविधान अगर वो बंदा लिखता जिसको फ्रीडम की कदर ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है व्हाट इज़ अ फ्रीडम, व्हाट इज़ अ राइट, व्हाट इज़ अ मोरालिटी,
व्हाट इज़ अ डिग्निटी, व्हाट इज़ अ इंटीग्रिटी, क्या वो लिख पाता? वो नहीं लिख पाता। क्या लिख पाते वो? अगर अंबेडकर के अलावा जिसने वो छुआछूत फेस की, इनइक्वालिटी फेस की और ह्यूमिलेशन फेस की हर लेवल पे, क्या वो ऐसा संविधान लिख पाते सबके लिए अगर अंबेडकर ना होते? मेरे ख्याल से अगर अंबेडकर उस कमेटी में ना होते तो शायद ये कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बनना तो जरूर था, जस्ट फॉर द स्पेसिफिक क्लास। Before the independence, there was discussion going on that after the independence, who will run this country? Who will rule this country? But this constitution's giver rights to the every citizen. Is there any difference between the anyone? There is Article 14 is there. There is Article 14, equality before a law. There is Article 16, equal opportunity for the everyone. You cannot discriminate on the basis of caste, sex, creed and on the basis of place of birth. ये नहीं कह सकते कि वो हरियाणवी है, वो बिहारी है, वो यूपी से आया है, उसको राइट नहीं देना. नो, देयर इज़ अ कंप्लीट बार. There is a complete bar. So that is why such a fine constitutions we have. But we have to learn with this manner so that we can provide the justice to the everyone. Equality to the everyone. That was the main spirit and the main agenda of the Dr. B.R. Ambedkar. I need your kind intentions on some important movements of the Dr. B.R. Ambedkar. The first one was the Mahad Talab movement. Mahad Talab movement, which was the first foundational struggle. इस स्ट्रगल के बाद ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक्टिवली मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना किया. आफ्टर दिस मूवमेंट, दैट वाज अ महार तलाब मूवमेंट. व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट movement? Why Baba Saheb Ambedkar lead this movement? And 10,000 people joined this movement. Just because there was a reason the depressed class were not allowed to drink water from the public tank, water tank. Even a dog, animals, others creatures, they can drink the water, but the depressed class can't drink the water. He led that movement. The depressed class faced attack by the upper community. They said, this is our custom, we can't allow them. Baba Saheb Ambedkar, with his ability, with his knowledge, fight against them and raised this issue before the Britishers. Then what happens? Then this tank open for all. Can you allow such kind of thing that you will drink? You can drink this, but other can't drink. This was the inhuman treatment that the depressed class was suffering since the ancient time. Look at the struggle of the Dr. Ambedkar. Look at the struggle. A single man in his little life, एक छोटी सी जिंदगी में उसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी. हजारों लोगों की उसने जिंदगी बदल दी. When he understand what is there was some text, some religious books was there, like a Manu Smriti and the others. Manu Smriti was not only against the depressed class. आप एक बार मनु स्मृति जरूर पढ़ना. आप सभी को एक बार मनु स्मृति जरूर पढ़नी चाहिए. उसमें औरतों के खिलाफ भी लिखा है,
औरतों को प्रॉपर्टी राइट नहीं है, औरत सिर्फ एक भोग विलास की वस्तु है। What was the treatment and what was the ideology in the Manusmriti? He exposed, Ambedkar exposed. So there was not constitutions, there was not any kind of a protection for the Ambedkar at that time. He burned the Manusmriti publicly in the 25th century, in the 1927. कह रहा आग लगा दूंगा ऐसे धार्मिक ग्रंथों को जिसमें बराबरता का अधिकार नहीं है। He dared to burn this Manusmriti in a full public view. He raised objection against the inequality treatment. आप सोच सकते हो आज के समय में तो आप नहीं कर सकते, पर अंबेडकर ने तब किया था जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ही था। अगर किसी को याद हो, आज से 2 महीने पहले एक पार्लियामेंट में बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशंस हुआ था। अगर किसी को उसके बारे में कुछ पता हो तो काइंडली रेज योर हैंड। उसमें एक कोट बोला गया था कि रामचरितमानस में एक चीज़ लिखी गई थी, डोल गवार शूद्र और नारी सब ताड़न के अधिकारी, और इस पर सभी पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ऑब्जेक्शन रेज किया था। किस किस को पता है कि ये इशू रेज हुआ था पार्लियामेंट में? So now we are discussing on such a issues now in this modern era. Now we are discussing now, and he burned such kind of literature in that time. उन्होंने उस समय जला दिया था, और आज हम कह रहे हैं कि हमें सबसे ज़्यादा नॉलेज है, हम सबसे एडवांस कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, और 4th 1 पे आते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो हमने पहले क्यों नहीं जलाया? अंबेडकर का विजन देखो, और देखो ही वॉज अ नेशनलिस्ट टू, वो राष्ट्रीय भी थे। हर एक में अपनी राष्ट्र भावना होती है कि मैं इंडियन हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं बांग्लादेशी हूँ। हर एक जो सिटीजन होता है वो अपने देश के लिए बाउंड होता है। बाबा साहब अम्बेडकर जब इस देश की डिवीजन हो रही थी, when the peoples were wanting to divide the India into the several parts just on the basis of their caste, religion, हिंदुओं को अलग देश दे दो, मुसलमानों को अलग दे दो, और इसकी डिवीजन कर दो। अगर ऐसा कुछ होता तो आज जिसे हम कहते हैं कि एक जो नेशन हम मैप देख रहे हैं वो पॉसिबल ही ना होता। बाबा साहब अम्बेडकर से किसी ने पूछा कि आपके लोगों की तो गुड स्ट्रेंथ है, पॉपुलेशन भी है आप लोगों की, तो आप, एक ब्रिटिशर ने पूछा, आप क्यों नहीं एक अलग देश की मांग करते हैं? ही सेड वी आर द फर्स्टली एंड द लास्टली इंडियन। हम पहले से और आखिरी भारतीय हम हैं। मतलब ही नेवर इंसिस्ट फॉर डिवाइडिंग द इंडिया इनटू द सेवरल पार्ट्स। ही वॉज अ नेशनलिस्ट। जब लोग धर्म पे, जात के नाम पर देश बांटना चाहते थे, वो कहता था कि वी आर द फर्स्टली एंड द लास्टली इंडियन। ही नेवर इंसिस्ट फॉर डिवाइड द इंडिया इनटू द सेवरल पार्ट्स। और व्हाट वाज हिज थॉट ऑन द पार्टीशंस ऑफ इंडिया? आपको पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले ही चैलेंज कर दिया था आर्टिकल 370? नहीं पता? जो आर्टिकल 370 है, और मोस्ट controversial article in our constitution, which now has been deleted already by the parliament. उसके बारे में शेख अब्दुल्ला सब, जब ये एग्रीमेंट हो रहा था तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि यू विश कि इंडिया आपको एक रोड भी बना के दे, आपको आपके बॉर्डर की सिक्योरिटी भी करे, और आपको प्रोटेक्ट भी करे, और आपको एक स्पेशल दर्जा भी दे, और उसके बदले में इंडिया आपको ऑक्यूपाई ना करे, इंडिया का आपके ऊपर अधिकार ना हो। बाबा साहब ने चैलेंज किया था आर्टिकल 370 को। उन्होंने कहा था कि फ्यूचर में जाके ये हमारे लिए सबसे बड़ी सरदर्दी बनेगी। और नाउ सी, सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा
आर्म फोर्स, सबसे ज़्यादा जो रिबेलियन है, इंसर्जेंसी है, वो कहाँ से हो रही है? जम्मू एंड कश्मीर से। हमारे पास वर्ल्ड फेमस साइट है एज अ मिनी स्विट्जरलैंड, जिसे कहते हैं हेवन ऑन अर्थ कश्मीर, तो हम इंजॉय नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज ऑफ मिलिटेंसी इज देयर। दैट इज द रीजन। वो मिलिटेंसी का कारण क्या था? आर्टिकल 370 को ऐड करना। जैसे मैंने आपको बताया, ही गॉट द डॉक्टरेट फ्रॉम LSE, लंदन इकोनॉमिक स्कूल। उसके बाद उनके काफ़ी आइडियाज़ आए। उनके आइडियाज़ के बेस पर ही जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन हुई। लुक एट हिज विजन, किस तरीके का उनका विजन कैसा था कि देश को क्या क्या चीज़ें चाहिए। और हमें सिर्फ यही बताया गया कि वो सिर्फ एक डिप्रेस्ड क्लास के लीडर थे। ही वॉज द ओनली लीडर ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास। I think after the finishing of this lecture, I know everyone will talk about that the several issues raised, and the exchange I have shared many ideas and raised many points on Ambedkar. I know everyone will go through all these aspects. But what was the Ambedkar in reality? Look at the portrait of Dr. B.R. Ambedkar. On my back side, there are several portraits are there of a B.R. Ambedkar. The people call him as a Baba Sahab, just giving him a more respect, a Baba Sahab Ambedkar. Ambedkar को जब हम देखें as a when he becomes the labor minister in the 1942 to the 1946, there was first working hour जो था for a labor तो 14 आवर था, 14 घंटे का। आज 1-2 घंटे में थक जाते हैं। उस समय 14 घंटे का टाइम था। तब उन्होंने वो रिड्यूस किया 14 to 8 आवर। अभी आप 8 घंटे काम करके घर जा सकते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ several amendments were brought by the Dr. B.R. Ambedkar for the welfare of the labor communities. Labor की कोई क्लास है? Labor no class. कोई भी रिलीजन, कोई भी कास्ट, कोई भी धर्म का बंदा उसमें काम कर सकता है एज अ लेबर। तो वो काम भी जनरल पब्लिक के लिए था। Maternity leave. There are several. He did many works for the betterments of our society. The several provisions in the Indian constitutions, the very much important provision as a Article 13 is there. Article 13, have you gone through? Have you gone through? I'll ask you later. So Ambedkar, the Baba Saheb Ambedkar, as a jurist, as a journalist, he introduced the first newspaper, Amuk Nayak. I cannot pronounce it properly. Muk Nayak, Vanchit Jagat Ka Nayak, leader of mute. The people, those can't raise their voice, who can't speak, वो उनकी आवाज़ बन रहा था, वो उन्होंने इंट्रोड्यूस की। Look at the work of the Ambedkar. Sometimes he becomes a politician, sometimes he becomes a doctor, economist, then he becomes a journalist. He understands the value of the media, the power of the media at that time. Now we know this is the fourth pillar of the Indian democracy. आजकल जो जी न्यूज़ या अदर चैनल पे जो दिखता है हम तो उसे ही समझ लेते हैं। दैट इज द मीडिया। जो मीडिया पे आ रहा है सभी यही समझ लेते हैं यही हो रहा है कि पाकिस्तान बहुत गलत कर रहा है। दैट इज व्हाट
द मूक नायक, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये मूक नायक अखबार शुरू की, what was the vision behind of this publications for this newspaper? उन्होंने ये कहा कि लोगों तक उस मुद्दों को जाना चाहिए, उस इश्यूज को लोगों तक जाना चाहिए जो डिप्रेस्ड क्लास और अग्रीड लोग नहीं पहुंचा सकते। सरकार तक वो आवाज़ पहुंचनी चाहिए। लोग तो इतने काबिल नहीं थे कि अपनी आवाज़ पहुंचाते, और लोग अपनी कंप्लेंट्स बताते थे। पीपल सेंड लेटर टू द अम्बेडकर फॉर द पब्लिकेशंस ऑफ देयर इशू व्हाट दे आर फेसिंग एट दैट टाइम। कई जगह डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, कई जगह कुछ हो रहा था, कई जगह इनइक्वालिटी, इनजस्टिस, कई जगह ब्रिटिशर कुछ कर रहे थे। तो वो लोग लेटर भेजते थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कि हमारी आवाज़ मूक नायक के माध्यम से जाए। दिस इज द वन ऑफ द फेमस न्यूज़पेपर इंट्रोड्यूस्ड बाय द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अभी वो जो मूक नायक है वो ऑनलाइन अभी तक चल रहा है, आप देख सकते हो मूक नायक भर के, यूट्यूब, ऑनलाइन सारी जगह आप देख सकते हो कैसे इश्यूज आते हैं उसमें। और सेकेंडली उन्होंने इंट्रोड्यूस किया बहिष्कृत न्यूज़पेपर। बहिष्कृत ग्रुप ऑफ पीपल जो इकट्ठे होके, जिन्होंने एक एजिटेटिव मूड के ऊपर जाके, जिन्होंने मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना है, किस वे से ऑर्गेनाइज करना है, दैट वाज द वर्क ऑफ द बहिष्कृत, दैट वाज द वर्क ऑफ द बहिष्कृत न्यूज़पेपर। और उसमें सारी मूवमेंट्स के बारे में लोगों को अवेयर किया जाता था, नॉट ओनली डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट बट द नेशनल मूवमेंट्स फॉर द स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम्स, all the ideas was covered under this newspaper. And the third one, which was very important, Janta newspaper. Which one? Janta newspaper. उसमें there is a very famous quote, tell slave, you are a slave and they will revolt. Tell slave, you are slave and they will revolt. गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो बगावत कर देगा। That was the quote introduced by the Dr. B. R. Ambedkar, and that was the vision of the behind of the जनता न्यूज़पेपर। उसमें उन्होंने बताना लोगों को कि तुम लोग गुलाम हो। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि औरत को जला देना अपने पति के साथ, उसे प्रॉपर्टी से बिना उसके अधिकारों से रखना, और अदर कम्युनिटीज़ को राइट नहीं देने, कुछ नहीं देना। उन लोगों के लिए ये अखबार इंट्रोड्यूस किया था। किन लोगों के लिए? उन सभी के लिए जो डिप्रेस्ड थे। डिप्रेस्ड वर नॉट ओनली दलित, द वुमन टू, और माइनॉरिटी, इन सभी के लिए वो न्यूज़पेपर था। एंड ही वॉज नॉट ओनली द लीडर, national leader, he was the international leader at that time. I told you the struggle and the work of the Ambedkar, the alterations and the modifications of the room took many time. It's take time, modification, घर का पेंट, रेनोवेशंस वगैरह वगैरह करने के लिए हम कितने लोगों की हेल्प करते हैं। Look at the struggle. अगर अम्बेडकर के पीछे जाके देखोगे तो पता चलेगा एक बंदा, ओनली वन मैन, जिसने जो सोच लिया, क्या सोचा, जो उसने फेस किया, इनइक्वालिटी, आई विल नॉट टॉलरेट दिस। उसे कॉलेज में पढ़ने नहीं दिया, स्कूल में पढ़ने नहीं दिया। उसके साथ जो नाई जानवर के बाल काट सकता था, वो अम्बेडकर के बाल ही काट सकता था। और उसने अपनी सिस्टर से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो कहती कि ऐसे ही होता चला आ रहा है। वो कह रहे हैं कि मुझे कारण तो बताओ। कहते कारण तो हमें भी नहीं पता, हमें तो ऐसे ही फॉलो करना पड़ेगा। तो वो कारण क्या था, उसने सभी लोगों के सामने लेके आ गया। वन अम्बेडकर, कॉन्स्टिट्यूशन
Maybe the mere book for the some people. It may be book for the some people. But it is a guardian of the woman. It is a guardian for the minority, and it is a guardian for the depressed class. Maybe mere book for the other one, but for the woman, अगर आज उस आर्टिकल को पीछे हटा दें, हिंदू कोड बिल को आज एक्सपेक्ट कर लेगी एक दिन या 2 दिन के लिए, हम इमेजिन ही कर दें कि जो वुमेंस के राइट है वो एक दिन के लिए सपोज करो कि ख़त्म हो गए, तो सारी लड़कियां घर के अंदर जो ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस थी उस समय की, सभी घर के अंदर, और 2 घंटे के लिए भी अगर हम आपके सिविल और पॉलिटिकल इकोनॉमिकल एवरीथिंग अगर हम सस्पेंड कर दें, सभी घर में घर बैठ जाएंगे, और बोलने का भी अधिकार नहीं, ये भी नहीं है कि बोल लोगे, वो तो तब बोलोगे जब कॉन्स्टिट्यूशन राइट मिलेगा। कब मिलेगा? जब वो फ्रेम हुआ था, पहले तो कुछ नहीं था। इसलिए मैंने बोला कि फोर फादर और फोर मदर की लाइफ एक बार इमेजिन करके देखो, घर जाके इमेजिन करके देखना उनकी लाइफ क्या थी और आज आपकी लाइफ क्या है। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्ट्रेंथ वुमेंस की है यहाँ पर, आज भी सबसे ज़्यादा लड़कियाँ यहाँ पर है। और आप खुद देखो, इनके अलावा अगर आप इमेजिन करोगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोविजन ही निकाल दें तो ये पॉसिबल नहीं है। वो आपके लिए लड़ा है सरदार वल्लभ भाई पटेल से, जवाहरलाल नेहरू से, और कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के जो चेयरमैन थे उन सभी से लड़ा। वो कह रहा है कि अगर लड़कियों को, औरतों को अधिकार नहीं है तो मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा एज अ ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन। सो दिस वाज हिज स्टैंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वुमेन्स लाइफ। और हम सिर्फ इतना ही पता है कि वो कोटा वोटा दिया था कुछ दलितों को, रिजर्वेशन वगैरह शेयर कर दिया। सो ओनली लिमिटेड एस्पेक्ट हमने उनको समझा, बाबा साहब अम्बेडकर को। और आप एक चीज इमेजिन करके देखो कि बाबा साहब अम्बेडकर की लाइफ स्ट्रगल, उनके पीछे का वर्क, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ तक उन्होंने सिर्फ कम्युनिटी के लिए सर्व किया। और इंडिया में उनके बराबर कोई पढ़ा लिखा नहीं था। कितनी डिग्रियां थी उनके पास, कोई तो बता दो, एनीवन? कितनी डिग्रियां थी? 32। आज तो पता है लेक्चर असाइनमेंट मूड कोड वगैरह करके हमारे 5 साल कैसे खराब होते हैं और वो 1 डिग्री से कैसे जुलूस निकलता है। पर वो 32 डिग्री, 4 PhD, 4 PhD, कैन नॉट इमेजिन कि एक बंदे ने इतना कुछ पढ़े भी, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ते ही रहे, और एक्टिव मूवमेंट भी की। जहां अम्बेडकर खड़ा हो जाता था उसके बराबर कोई जूरिस्ट, कोई स्कॉलर ही नहीं खड़ा होता था। बराबरी क्या, कौन करता बराबरी उसके खिलाफ? हर एक चीज का जवाब था उसके पास। तो बराबरी में तो कोई नहीं आया। जब इंडिपेंडेंस का टाइम आया तो अपने इंडियन चले गए ब्रिटिशर के पास। ठीक है भाई, आपने इंडिपेंडेंस तो दे रहे हो, कोई बंदा ऐसा भी दे दो जो कॉन्स्टिट्यूशन भी बना दे। वो कह रहे हैं आपको नहीं पता कि आपके पास ही एक बहुत बड़ा जेम्स है, बहुत बड़ा एक स्कॉलर है, बहुत बड़ा एक विजन है। वो कहते हैं कौन? कहते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और कहते हैं ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अरे वो तो डिप्रेस्ड के लिए सोचता है, वो तो किसी के लिए क्या करेगा। कहते हैं हमें पता है वो क्या करेगा, और वो ही करेगा आपके देश के लिए। तो मजबूरी से ये आए वापस, तो उन्होंने देखा कि मजबूरी में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बुलाया। कहते हैं हाँ भाई, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन लिखना। वो कहते हैं लिख तो मैं लूँगा, पर मेरी कुछ कंडीशन है। कहते भाई कंडीशन तो माननी पड़ेगी।
क्योंकि काबिलियत के आगे तो सभी ने घुटने टेक दिए। और उसने पूरे देश को बनाया। किसने? अम्बेडकर ने। और जब आप घर जाओगे, आई विश कि एवरीवन देखे उसे हर एक एंगल से, कि सच्ची में जो चीज़ें मैंने बताई बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, क्या रियलिटी में उन्होंने कुछ किया था कि नहीं किया था। तब आपको पता चलेगा कि एक औरत आज जो प्रेसिडेंट बनी है, सुप्रीम कोर्ट में जज बने, हाई कोर्ट में जज बने, और सारी स्ट्रेंथ में जहाँ पर गवर्नमेंट सर्विसेज है और प्रॉपर्टी में राइट है, उस सभी जगह हम इमेजिन भी ना कर पाते अगर अम्बेडकर ना होता। सब कुछ अवेलेबल है आपके पास, सिर्फ पढ़ने का तरीका देखना पड़ेगा। हमने कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ लिया उस वे से एज अ सब्जेक्ट। जब आप उसे पता करोगे कि व्हाट वाज द स्पिरिट, यू विल फाइंड द स्पिरिट, प्रोटेक्ट एवरीवन, प्रोटेक्ट एवरीवन। आप किसी बिहारी को नहीं मार सकते। मार सकते हो आप बिहारी को? नहीं मार सकते। यू कैनॉट डिस्क्रिमिनेट विद एनीवन on the basis of caste, creed, sex, religion and place of birth. तो आप कुछ कर तो सकते नहीं just because of the constitution. That is the best writing of the best contributions of the last moment which we have now, the constitution in form of, this is a living thing. Ambedkar है in the form of a constitution. और मैं तो यही कहता हूँ कि एट दी एंड जब मैं ये अपना लेक्चर ख़त्म करूँगा, कि अम्बेडकर जैसा बनने के लिए द पर्सन हु सैक्रिफाइस नॉट ओनली फॉर हिज कम्युनिटी, हिज कंट्रीब्यूशंस फॉर एवरीवन, फॉर नेशन, फॉर बेटरमेंट ऑफ माइनॉरिटी, फॉर बेटरमेंट ऑफ वुमेन। आपको पता चलेगा कि अम्बेडकर के बिना वी कैन नॉट इमेजिन कि ऐसा संविधान कभी बन सकता था कि नहीं। आई वॉज सफरिंग, क्या कहते हैं, रैंडमली चेक कर रहा था सोशल अकाउंट, तो उसमें एक लाइन आई, एक बंदे ने कमेंट लिखा अम्बेडकर के बारे में। कहता अगर अम्बेडकर जैसे व्यक्ति को संविधान ना लिखने देते तो हम, इसका नज़रिया ही कुछ और होता, इसका नज़रिया ही कुछ और होता। इसमें से काफ़ी पन्ने पढ़े होते, कोई पन्ने होने नहीं थे। लड़कियां अपनी मर्जी से शादी, लड़कियों को राइट, लेबर्स को राइट, हिज सजेशन, हिज विजन आर गई, हिज कंट्रीब्यूशन फॉर द एवरीवन। एक दिन घर जाके बस कॉन्स्टिट्यूशन को मेरे नज़रिए से देखो, आपको पता चल जाएगा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए जितना बड़ा हमारा एक स्ट्रगल था इंडिपेंडेंस के लिए। कौन सी लड़ाई थी सबसे पहले? 1857, 1853। उससे पहले से लेके आज तक का स्ट्रगल, वो इतना बड़ा स्ट्रगल वो नहीं था जितना बड़ा स्ट्रगल एक बंद कमरे में था। जहाँ ये संविधान बन रहा था, उससे भी ज़्यादा बड़ा स्ट्रगल तो वो लोग कर रहे थे कि किनको क्या देना है, किनको क्या नहीं देना। लुक एट द फ्यूचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक रिलीजन, हमने तो सिर्फ 4-5 ही पढ़े, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैनी मोर सोशल ट्राइब। अब बाहर कहीं स्टेट में जाके देखो तो पता चलेगा लैंग्वेज भी नहीं मिलती, 500 से ऊपर कोई लैंग्वेज है, और सबके लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक, एंड एवरीवन इज सेटिस्फाइड विद द वन कॉन्स्टिट्यूशन। नो वन इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, जस्ट बिकॉज ऑफ द विजन ही प्रोटेक्ट द एवरीवन टिल डेट। सो एज अ सेवियर, एज अ गार्डियन, guardians of the human rights, guardians of the women's rights, guardians of the minority rights, he was the one who was the only against the orthodox system. वो जो सिस्टम था ना,
एक पहले से चला आ रहा, उस सिस्टम को जड़ से अपरूटेड कर दिया। और किसने किया वो? अभी आप बोल दो, मेरे तो आधे घंटे से ज़्यादा लेक्चर है। किसने किया वो? थोड़ा लाउडली। थैंक यू। एट द एंड आई एम क्लोजिंग माय व्यूज ऑन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि मेरी एबिलिटी तो इतनी नहीं है, आई कैन नॉट डिफाइन द अम्बेडकर इन माई विद माई एबिलिटी। तो अगर उसके बारे में, अम्बेडकर के बारे में बात कर रही हो, तो वो तो पूरी लाइफ स्ट्रगल है उनकी, होल लाइफ विद द स्ट्रगल्स फॉर एस्टैब्लिशिंग द न्यू नेशंस। तो आई एम क्लोजिंग नाउ। एट लास्ट आई एम थैंकफुल टू द एवरीवन फॉर द पेशेंस हियरिंग। सुना भी है कि नहीं? तो थैंक यू। हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करता हूँ बार काउंसिल का, कि बार काउंसिल के जो मेंबर्स हैं और जो हमारे चेयरमैन हैं, उन लोगों ने हमें आज इस अवसर पे बोलने का मौका दिया। देखिए, जितना ब्यूटीफुली इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया मेरे साथी ने, राहुल जी ने, उतना तो मैं भी नहीं एक्सप्लेन कर सकता। बस मैं आप लोगों को कुछ बातें कहना चाहूँगा। कॉन्स्टिट्यूशन उसकी बात करता है कि साइंटिफिक बात करता है, वो कहता है कि तर्क पे जो है ना, तर्क पे होनी चाहिए। तो आप बीइंग एडवोकेट क्या है कि आप कुछ चीज़ें फेस करेंगे आगे आने वाले टाइम में। वो आप देखेंगे कि कई बार क्या होगा कि आपके जो पेरेंट्स हैं, जो कस्टम जो चलता आ रहा है ना, उसके बेस पे कोई बात बोल देंगे आपको। आप लोग ने अपना विज़न यूज़ करना है, और जो आपके पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, जो चीज़ है, जो आपके सामने बीइंग लॉयर आपके पास चीज़ें आई हैं, आपने सिर्फ उस पर रिलाई करना है। पहले देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो मेरे साथी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। वो बता चुके हैं कि उनको एक कैटेगरी का एक स्पेसिफिक वर्ड डाल दिया गया कि भाई दलित नेता है, वो उनके ही नेता थे, वो सब करके। तो देखिए, कुछ लोग एग्री होंगे, नहीं, कुछ लोग डिसएग्री भी हो सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ, आप लोग अभी अपनी सोसाइटी में, अपनी गली में, अपने साथ जो आपके कुलीग, जो कहीं भी आप काम कर रहे हैं, जहाँ भी हैं, वहाँ पे आप देखें कि एक्चुअल में ये चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है। ये देखने वाली बात है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वल राइट देता है। अब बहुत सारी बातें थी कि पहले जो है राइट्स नहीं थे, वो सब मेरे दोस्त ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप लॉयर हैं, कई बार क्या हो जाता है, हम लोगों पे प्रेशर आ जाता है कि पेरेंट्स जो है ना कुछ बात बोल रहे होते हैं, पेरेंट्स कोई बात बोलेंगे कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसा होता है। तो मैं आपको सिर्फ एक लॉयर होने के नाते सिर्फ एक बात बोलूँगा कि आप लोगों ने अपने पेरेंट्स पर भी विश्वास, ऐसा नहीं है कि मैं आपको उनके अगेंस्ट कर रहा हूँ, बट बीइंग लॉयर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जो आपके सामने डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर रिलाई करके ही कोई बात बोलें। कारण उसका, जब आप कोर्ट में खड़े होते हैं, फाइनली आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते नो 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 दिस वाज टोल्ड बाय माय पेरेंट्स एंड दिस दैट। यू कांट क्लेम एंड यू कांट ब्लेम एनीवन। फाइनली यू आर रिस्पॉन्सिबल। कई बार क्लाइंट होता है, कई बार 100 चीज़ें बताता है वो कि ऐसे ऐसे है जी, ऐसे ऐसे हुआ, ये सब हुआ चीज़ें, वो आप बिल्कुल भी उस पर विश्वास मत करें। आप अपना देखें, अपना विज़न, अपना दिमाग और प्रेजेंस ऑफ माइंड को इस्तेमाल करते हुए तब आप अपने इस प्रैक्टिस को करें। कॉन्स्टिट्यूशन को मदर ऑफ ऑल लॉज कहा जाता है, वो उसका रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि उसी से ही जो है अथॉरिटी, जो भी बोर्ड, जो कुछ भी बने हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट बना है, हाई कोर्ट बना है, सारी अथॉरिटीज़ जो बनी हैं वो इसी से ही बनी है, कॉन्स्टिट्यूशन से। पहले कॉन्स्टिट्यूशन आया, बाद में उसके बाद में आगे चीज़ें क्रिएट की गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन से सब एक्ट, प्रोविज़न, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, वो सब निकले हैं। तो आज की डेट में मीडिया पे बहुत कुछ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इतना ज्ञान बांट रही है आप लोगों को, यू शुड बी विजिलेंट। 2021 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था
सरकार को बोला, तब जाके एक जो है आईटी एक्ट में जो 2000 का है, आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसके बाद 2021 में जो है गाइडलाइंस इशू की गई। वो क्या गाइडलाइंस इशू की गई कि ठीक है, ऐसे नहीं है कि ये कुछ कोई भी कुछ बोल दे या कुछ भी है उसको रेगुलेट किया जाए। पहले भी थे कुछ प्रोविजन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं, थोड़े इस पर कुछ गाइडलाइन इशू करने की जरूरत है। तो वो आज के कंटेक्स्ट के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बात। आईटी एक्ट है हमारे पास, उसके बाद 2008 में अमेंडमेंट हुए हैं, 2021 में गाइडलाइंस इशू की गई हैं। और आजकल आप लोग देख रहे हैं ट्विटर पे कोई भी कुछ भी या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी कुछ भी बोल देता है। बहुत सारे लोग सिर्फ इमोशनल हो गए कि हाँ ऐसा हुआ, ये देखो ये हो रहा है, ये सब करके। आप बीइंग लॉयर, मैं सिर्फ एक ही बात सजेस्ट करूँगा, किसी भी वीडियो, किसी भी पिक्चर पे ऐसे बिल्कुल भी रिलाई मत कीजिए। सिर्फ अपना दिमाग लगाएं और अपने विजन से काम लें। कॉन्स्टिट्यूशन जो क्रिएट किया गया, जब बनाया गया, उस टाइम पे मैं एक बात बोलता हूँ, घर जाके थोड़ा आप लोग विचार कीजिएगा, इस पे दोबारा से सोचिएगा। क्या जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन जब ड्राफ्टिंग जब कमेटी बनी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया जाए, क्या उस टाइम और कोई एलएलबी क्या नहीं था? क्या पूरे इंडिया में नहीं मिला था उनको कि जो उन्होंने बाबा साहब को ही चुना कि नहीं, ये बाबा साहब को इनको ये मौका दिया जाए और वो सब कि ठीक है जी आप ही कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर पीएचडी कर रखी थी। उन्होंने अपने मेहनत के दम पे ये प्रूव करके दिखाया कि ठीक है, उनको फॉरेन लॉ की बहुत अच्छी नॉलेज थी। और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा जाता है तो आप ये बात समझिए कि आप सभी लोग जानते होंगे कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। इतना बड़ा किसी भी देश का नहीं है। अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ से एक्सट्रैक्ट की गई हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जैसे हैं, आप लोग जानते हैं कि रशिया से लिए गया। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमने यूएसए से लिए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं। इसी तरह जो जो चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया देशों से उठा के फिर हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। और प्रेजेंट सिनेरियो की अगर बात करते हैं तो भी आप देखें, इसके अंदर प्रेजेंट सिनेरियो में भी बराक ओबामा की एक स्टेटमेंट आई थी। उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर अंबेडकर हमारे यहाँ जन्म लेते तो हम उनको सिंबल ऑफ नॉलेज बोलते। तो कितनी बड़ी बात है। अब पहले उनको राइट नहीं था। ऐसा नहीं है कि लोग पहले जो है गरीब लोगों को राइट नहीं था, एक कुछ लोगों को बांट दिया गया था। और इसके अंदर भी ये है कि अभी किसी से भी बात करो, वो बोलते हैं कि जी हिंदू में 4 वर्ण, एक शूद्र जोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर बाबा साहब की आप बुक पढ़ेंगे तो तैत्रेय ब्राह्मण जो है वहाँ तक चौथा वर्ण था ही नहीं, शूद्र नहीं था कुछ ऐसा। लेकिन पढ़ा दिया ऐसा गया आज की डेट में। अगर मैं अभी भी यहाँ पे सब लोगों से पूछूं ये हिंदू धर्म में कितने वर्ण, आप लोग कहेंगे नहीं 4। तो बहुत कुछ मॉडिफाई किया गया है पीछे, इतिहास में बहुत कुछ बदला गया है। तभी मैं कहता हूं कि मेरी बात भी मत मानो, किसी की भी बात मत मानो, लेकिन जो आपके पास ऑथेंटिक डाटा है वो ऑथेंटिक सोर्स से होना चाहिए। पहली बात, आप अगर किसी बात को बोल रहे हैं तो आपके पास एक्ट है, एक्ट के ऊपर रिलाई करके बात करें कि यस ये पास किया गया एक्ट, इसमें हम इसके ऊपर बात, इसको बेस बना के फिर बोल रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है हमारे पास, जी ठीक है ये वाला है, इसके ऊपर बात, ये बेस है हमारा, ये आधार है, उसके ऊपर बोल रहे हैं। सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर सभी तरह के लोग हैं, तो कुछ लोग एग्री करते हैं, कुछ लोग डिसएग्री करते हैं। अब जैसे जेएनयू है हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी, तो उसमें क्या है कि उसके अंदर उसकी ब्यूटी है एक अपने आप में। क्या ब्यूटी है उसकी कि दोनों तरह के जो है ना पक्ष और विपक्ष में वहाँ पे स्टूडेंट जो है वो अपने अपने पक्ष रखते हैं। वहाँ पे डिबेट होती है, ओपन डिबेट होती है स्टूडेंट्स की। अब आप कहेंगे क्या फ़ायदा उसमें ऐसे डिबेट का? उसका डिबेट का ये फ़ायदा है, उससे कहीं पे कंक्लूजन, कहीं पे एक क्रक्स निकलता है
कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है तो इसका ये सॉल्यूशन होना चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो बहुत ये कहा जाता है कि जी रिजर्वेशन रिजर्वेशन, इसमें किसी को माइंड करने की बात नहीं है। कई लोग कहेंगे कि नहीं, ये दलित खा गए सब, रिजर्वेशन मिल गया इनको, ये लोग एजुकेटेड नहीं है, ये लोग कंपेटिबल, ये लोग कैलिबर नहीं रखते उस लेवल का। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं, 2 सेगमेंट है एम्प्लॉयमेंट के, एक है प्राइवेट सेक्टर, एक है गवर्नमेंट सेक्टर। तो जो रिजर्वेशन है आप सभी को मालूम है कि वो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर मिलता है, प्राइवेट सेक्टर में कोई रिजर्वेशन नहीं। कोई पूछता है आपसे प्राइवेट सेक्टर के अंदर कि ये आप कौन सी कास्ट के हो, हाँ भैया कौन जात तुम, कोई भी नहीं पूछता है लोगों से, ठीक है। हरियाणा में जाओ, पंजाब में जाओ, आप कहीं भी ऐसा कुछ नहीं होगा प्राइवेट सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर की बात करें तो अगर 100 अगर नौकरियां हैं तो उसमें सिर्फ 2% में रिजर्वेशन है, ये बात समझ लेनी चाहिए आप लोगों को। लेकिन क्या होता है, वो एक तबके का कहता है नहीं 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 ये सारा रिजर्वेशन ये लोग खा गए, दूसरे कहते हैं नहीं नहीं ये बात बिल्कुल ठीक है, वो कहता है गलत है। तो सभी तरह का मतलब द्वंद चलता रहता है। लेकिन अपना दिमाग लगाएं और उस पर सिर्फ एक सिंपल छोटी सी पिक्चर के ऊपर मत जाएं, उसके पीछे जो है होल स्टोरी, फुल स्टोरी देखनी चाहिए हमारे को। अपना दिमाग लगाएं। आपके दोस्त ने बोला, इसने बोला, उसने बोला, इन्फ्लुएंस हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लॉयर हैं, बीइंग लॉयर आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। कोर्ट में जब आप कोई बात बोलते हैं उसका वैल्यू होता है। अगर आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, जस्टिस जो हैं वो अगर कोई बात बोल देते हैं वो अगले दिन लॉ बन जाता है। पूरे हरियाणा पे इंप्लीमेंट होगा, पूरे पंजाब पे और चंडीगढ़ पे। लॉयर को ऑफिसर ऑफ कोर्ट कहा जाता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का पार्ट है। तो आप सोचें कि ये बहुत मतलब ठीक है, और मैं आप सब लोगों को कंग्रेचुलेशन बोलूँगा कि आप लोगों की मेहनत काम आई है और आप लोगों ने इस प्रोफेशन को चूज़ किया है। तो बस एक यही बात कह के मैं अपनी बात को कंक्लूड करूँगा। आप बीइंग लॉयर, ये आपको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो सामाजिक हैं वो सभी फैक्टर्स जो हैं उन सभी को लेके आप मतलब पढ़ें। जो एडवोकेट होता है उसको सिर्फ अपने लॉ की नॉलेज तक सीमित नहीं रहना चाहिए। और फील्ड में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है। अब आप लोगों को डरा नहीं रहा, आप कहेंगे कि ये डरा रहा हूँ, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर क्या होने वाला है, बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़ने वाली है। मैं पहले 6 साल कंप्यूटर में काम कर चुका हूँ और उसके बाद में मेरा प्रैक्टिकल अभी पीछे 14 साल का एक्सपीरियंस है हाई कोर्ट का। तो उसके बेस पे मैं एक बात बोल रहा हूँ कि चैट जीपीटी आ गया है, आपकी पिटीशन ड्राफ्ट वो फटाफट कर देता है, वो तो आप उसको कमांड देना सीखें। आगे जो लोग आगे इस तरह के प्रोग्राम बना दिए जा रहे हैं कि कुछ केसेस हैं, जजमेंट है, वो अपने आप वो लिख दिया जाएंगी। और मैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के मैं जानता हूँ उसके पहलू को, इस वजह से आप लोगों को कह रहा हूँ। बाद में स्पेशलाइजेशन रह जाएगा। सिर्फ स्पेशलाइजेशन कैसे, कि एक आदमी जो अपने फील्ड का मास्टर है, जो अपने फील्ड में एक स्पेसिफिक फील्ड में बहुत अच्छे से जानता है, वो तो ठीक है। अदरवाइज जो है ये टेक्नोलॉजी जो है वो उसके अंदर ठीक है, उसको उसके लिए मशीन को एक रीड करना है कोई जजमेंट, तो वो बहुत इजीली रीड कर पाएगी। वो रीड करके उसके ऊपर ये लीगल इश्यूज हैं, इसके ऊपर ये जजमेंट है, ये लॉ कहता है, और इसके ऊपर ये ऑर्डर है, दैट्स इट, हो गया काम खत्म विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। ऐसे नहीं है इट विल टेक टू मच टाइम, नो। तो आप जहाँ पर हैं आप भी बढ़िया से आप अपने काम करें और स्पेशलाइजेशन और उस पर ध्यान रखें कि उसमें पकड़ बनाने की कोशिश करें आप लोग, और सिर्फ जो है अपने लॉ तक सीमित ना रहें। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपको बहुत सारे राइट्स देता है, उसके साथ आपकी ड्यूटीज़ भी बनती हैं।
समाज में आज किसी के साथ में कुछ गलत होता है तो आप पूरा विरोध करें बीइंग लॉयर। ये डिवीजन में मत जाइए कि नो इज नॉट फ्रॉम माई कम्युनिटी एंड फ्रॉम माई रिलीजन। ठीक है, बाकी ज़्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।